اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریجنل ٹیکس آفس راولپنڈی میں آج 6 اہلکار جو ہے اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کا یہ وقت بہت ہی اچھا گزرا اور آج یہ پورے وقار اور عزت کے ساتھ ہم بھائیوں سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم سارے لوگ ہیں اس سے پہلے ابتدائیہ اس کا بنائیں۔ تو دوستوں اس طرح ہے کہ یہ ریجنل ٹیکس آفس راولپنڈی کی ریت رہی ہے۔ اس ریت کو نبھاتے ہوئے یہ سنگ میل آج ہم سال کے آخر میں عبور کر رہے ہیں۔ اس سال 37 اہلکار RTO راولپنڈی سے ہم سے پچھڑے الوداع ہوئے۔ یہ 6 کا سپیل آخری سپیل ہے ان 37 میں سے۔ آج ان سے پہلے آج تک 31 اہلکار ہم اپنے ساتھ سے الوداع کر چکے ہیں۔ آج یہ 6 جب ان میں شامل ہو جائیں گے تو یہ 37 ہو گئے۔ میں تھوڑا تعارف کراؤں۔ سب سے پہلے ہمارے محترم ظہیر شکوری صاحب APS ہیں ہمارے، ان کا وقت پورا ہوا۔ رضوان قیوم صاحب ہمارے سپروائزر ہیں، ان کا مدت ملازمت پورا ہوا۔ حبیب صاحب ہمارے سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کا زیادہ تر وقت اپیلوں میں اور انٹرنل آڈٹ میں ہوا اور یہ نوکری کے آخری حصے میں RTO راولپنڈی میں آئے۔ ان کی ٹرانسفر ہوئی کیونکہ ادھر سیٹ نہیں تھی، اس لیے یہ سیٹ کے ساتھ ادھر RTO راولپنڈی میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے جمیل صاحب کا بہت بڑا وقت ریجنل ٹیکس آفس راولپنڈی اور راولپنڈی زون میں گزرا۔ ظفر ملک یہ بھی ادھر ان کا سارا ٹنیور مکمل ہوا، ہمارے ساتھی ہمارے کلیگ۔ اور جس جگہ میں کھڑا ہوں پرانے جو سیٹ اپ میں انکم ٹیکس پنڈی زون کا ریسیپشن تھا، اس وقت ظفر اسی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی ایز اے ریسیپشنسٹ پرفارم کرتے رہے۔ اسماعیل صاحب ہمارے کلیگ، وہ سیل ٹیکس کے بھائیوں کے ساتھ ایک پارٹی تھی ان کی، عشائیہ کیا گیا تھا ان کے ہاتھ میں، تو وہ ادھر گئے ہوئے تھے کھانے کے لیے، آ رہے ہیں، ہم سے ہماری بات ہوئی ہے۔ تو آج کا یہ پروقار دن ان دوستوں کے نام ہے۔ آج کے دن ان دوستوں کا ساتھ ہمارا دفتری دنیا کے اندر تقریباً آخری ہوگا اور اس کے بعد ایک اور نیا زندگی کا دور شروع ہونے جا رہا ہے ان کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کا وہ ٹنیور بھی اچھے طریقے سے گزرے، سکون سے گزرے، تاکہ جو باقی ماندہ ان کی زندگی ہے وہ خوشی کے ساتھ گزرے، اطمینان کے ساتھ گزرے اور تسلی اور سکون کے ساتھ یہ وقت گزارے۔ ہماری ان کے ساتھ جو قربت داری ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ جب تک RTO پنڈی کے امپلائیز کی سانسوں میں سانس ہے اور ان کی سانسوں میں سانس ہے، وہ رشتے اسی طریقہ سے قائم و دائم رہیں گے۔ تو ہم اس محفل کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ پہلا سیشن یہاں تک، باقی اسماعیل صاحب آتے ہیں، پھر ہم اپنے جو آئی اپ سے ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے۔ تو یہ سیشن یہاں تک ہے۔ ہم چاہیں گے کہ وحید صاحب جو ہمارے کلیگ ہیں اس موقع پہ تھوڑا سا اپنا وہ اظہار خیال کریں، اس کے بعد وحید صاحب ادھر تشریف لائیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ رضوان کے متعلق میں بولوں گا، تو اس وقت آپ رضوان صاحب کے متعلق جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں۔ اچھا میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ سب دوست جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ شاہ صاحب جب تمہید باندھتے ہیں نا تو وہ کسی دوسرے کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتے۔ تو مجھے پتا تھا کہ شاہ صاحب کوئی ایسی بات چھوڑ کے نہیں جائیں گے کہ میں کچھ اس الفاظ ادا کر سکوں۔ رضوان صاحب کے حوالے سے اگر میں نے کہا تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ یہ نہیں کہ میں نے صرف رضوان صاحب بلکہ جو تمام دوست احباب آج ریٹائر ہو رہے ہیں، جس میں حبیب صاحب، جمیل صاحب، ظفر صاحب، شکوری صاحب اور اسماعیل صاحب، یہ سب سے بڑا پیارا اپنا محبت عقیدت رشتہ ہے۔ ظفر صاحب کا مجھے یاد ہے جب میں نے نوکری کا سفر شروع کیا تھا تو میں نے یہاں سے قدم رکھا تو ایک مسکراتی شخصیت یہاں کھڑی تھی اور میں اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کر حاضر ہوا، تو میں نے انہوں نے مجھ سے پہلا کوشچن کیا، جناب کام کیا ہے؟ میں نے کہا جناب
खास साहब को जॉब मिली और मैं इस तरह जाना चाहूँ, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सब रियलिटी दलील साहब के साथ मैं अपील उत्तर में रहा हूँ, शकूरी साहब के साथ वैसे डायरेक्ट काम नहीं किया, लेकिन हमारा और इस्माइल साहब तो इनको हमेशा मैं कहता हूँ संगे जोड़ दे। अब आते हैं अपना रिजवान साहब की तरफ। रिजवान साहब के बारे में इसलिए एक बात मैंने शाह साहब से कही कि इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। रिजवान से मेरी मोहब्बत अकीदत का सिलसिला इस लिहाज से भी है कि मैं चूँकि खुद सहाफत से छोड़ के इनकम टैक्स में मैंने ज्वाइन किया था अखबार से, तो लिखने लिखाने का शौक था, तो यहाँ पे कोई मुझे इस तरह वो जब मैं आया तो मैंने कहा बड़े डर से लोग हैं, कोई इनमें वो नहीं है, लेकिन तो रिजवान से जब मैं मुलाकात हुआ और मुझे जब पता चला कि जनाब ये लिखने लिखाने शौक रखते हैं, और खुसूसन जब इनकी मैंने किताबें पढ़ी और इनकी तहरीरें पढ़ी तो आई वॉज अमेज्ड। और मुझे आप सच्ची पूछें तो इस बात का बहुत दिली शौक भी हुआ कि काश मैं रिजवान जैसा लिख सकूं, क्योंकि रिजवान माशाल्लाह बहुत अच्छा बुखारी है। अगरचे ये कि डिपार्टमेंट में मैं ये बल्कि अभी मैंने मैम चीफ को भी बताया इनके बारे में कि ये एक डिपार्टमेंट में छुपे रुस्तम हैं। हमारे ऑफिस में बेशुमार माशाल्लाह नगीरे कहना चाहिए हीरे हैं जो छुपे हुए जिनके सलाहियतें मौजूद हैं। रिजवान ने बहैसियत दोस्त, बहैसियत साथी, तो अपना जहाँ बैठे महफिल की जान रहे हैं, रौनक रहे हैं, और बल्कि हम तो इनको बुला बुला के खुद कहते हैं कि आए, बल्कि और अब थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा एहसास को ताज़ा करें। लेकिन रिजवान साहब को इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये अपना एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि किसी ने इनको कहा था बहुत आगे जाओगे, तो इंशाअल्लाह ये आगे जा चुके हैं और मज़ीद भी आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सब दोस्तों के लिए मेरा बहुत सारा प्यार जो रुखसत हो रहे हैं, ईच वन ऑफ यू, ये नहीं कि मैं सिर्फ ये रिजवान साहब के बारे में कह रहा हूँ, आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम अजीज हो और हम सब के लिए, बल्कि तो एक से बढ़कर एक है। और जिस तरह शाह साहब ने कहा, हमारी मोहब्बत का, हमारे प्यार का सफर यहाँ खत्म नहीं होगा जब तक हमारी सांसें हैं। सांस की बात ही करें, सांस की बात करें तो मौजूद है, हम इंशाल्लाह एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। और कहते हैं ना जिंदगी रही तो मुलाकातें होती रहेंगी। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और बहुत सारा प्यार। और ये रिटायरमेंट के बाद बात हुई आती है, अभी मैं बाकी नहीं भाई को कह रहा था, मैंने कहा जी रिटायरमेंट के बाद आप वो करें जो दिल करता है, तो नहीं भाई ने कहा जी अब हुड़ की बाकी रह गए, लेकिन अब आप जिंदगी को सही दिए। समझे कि एक किस्म का सर्विस का शौक था, पाबंदियाँ थी, आप उससे गुजर कर अपने, अब देखें इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये बात याद रखें। सैयदा ज़हरा ने फरमाया था कि जवान उसका दिमाग होता है, दिल होता है, ठीक है, अंदर बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े से मुराद ये है कि आपके अंदर जो आपके मुशागल थे या जो आप नहीं कर सके वो उस तरफ जाएं, अपने आप को मसरूफ रखें, खुश रहें, अपनी सेहत का ध्यान करें, सलामत रहें। दोस्तों आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। हम तो सुनते भी रहते हैं, हमें आप बर्दाश्त भी करते हैं, सुनते भी रहते हैं। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर ये जो हमारे साथी हमसे आज दफ्तरी ज़िंदगी पूरी करके हमसे जुदा होंगे, ये थोड़ा थोड़ा अपने जज्बात का इजहार ये भी करेंगे। सबसे पहले शकूरी साहब, आप अपने दिल का। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा मेरा तकरीबन 40 साल सर्विस मेरी गुजरी है, और ज़्यादातर मेरी सर्विस RTO पिंडी में गुजरी है। तो मेरा बहुत ही अच्छा सफ़र गुजरा है, बहुत ही प्यारा मेरा वक्त गुजरा है तमाम दोस्तों के साथ। और आपकी मोहब्बतें जो आज आपने हमारे लिए ये अपनी बहुत अच्छी तकरीब का इनेकाद किया है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। ज़हीर साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना दिल का इजहार जो है बयान फरमाया। रिजवान साहब, आप। सबसे पहले तो ये है कि मैं तो थोड़ा बहुत लिखता हूँ, आज सच्ची बात है मेरे लफाज ही खत्म हो गए और मैं कि आज जो बात आपसे दो तीन करूँगा हकीकत की बुनियाद पे। आज ज़िंदगी के इस मोड़ पे एहसास हो रहा है कि ये तो हमारा बाप था, ये महकमा नहीं था, हमारा बाप था, सब पाला है जैसे पर। दूसरी बात यह है कि हमारा जो महकमा ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और हमेशा तरह ये रीढ़ की हड्डी होता है। तो इस डिपार्टमेंट में अब जो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। जब हम आए तो उसको सोचते भी नहीं थी कुछ, अब तो सोचते भी हैं और बड़े कहने के मौके भी हैं आगे बढ़ने के, और ये महकमे के रेवेन्यू हम कलेक्शन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कि यहाँ पे बहुत अच्छी तनख्वाह डबल फीसदी मिलती है, जो नए लोग हैं उसको कमी को ज़्यादा समझते हैं।
क्योंकि बाहर के, क्योंकि मैं तो एक राइटर आती हूँ, बाहर फिरता हूँ लोगों तो मैं देखता हूँ हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो कुछ लोग हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ा शिकवा करते हैं कि सहूलतें नहीं हैं, लेकिन बाकी सहूलतें भी नहीं है, मेडिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं है मेडिकल, लेकिन इसके बावजूद भी और भी बहुत सहूलतें हैं, बड़ी अच्छा माहौल है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो एक नालायक आदमी हूँ, मुझे तो कोई लेता ही नहीं था सच्ची बात है, क्योंकि दफ्तरी मामले में मुझे समझ नहीं लगी। मैं तो एक नित्य लिखाने वाला छोटी था, बाकी आप लोगों की मोहब्बत मिली और मैं बस शुक्रगुजार हूँ। आपने बावक़ात तरीके से हमें यहाँ पर रुख़्सत किया, राशिद शाह साहब और ये वही साहब, और इससे पहले जो हमारे यूनियन के थे उन्होंने हमारे हक़ों के लिए बड़ी जंग लड़ी, अपना भी नुकसान खा लिया लेकिन हक़ों के लिए लड़ते रहे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और गलती शलती हो तो माफ़ फरमाएं। मैंने कुछ यादों के हवाले से थोड़ी सी कोशिश की है, वो मैंने कम्फर्ट से अपनाया, और एक और चीज़ मैं व्हाट्सएप में तस्वीर जमा की है पुरानी, तो वो आपको शेयर करेंगे। बाकी आप खुश रहें। इस्माइल साहब का गला सेट नहीं है, उनके भी आप पे मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। आप चाहूँगा कि जमील साहब आप बयान फरमाएँ। तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सब के प्यार का मशहूर हूँ जो आपने हमें इतनी इज्जत से रुखसत कर रहे हैं। तो अल्लाह का फजल है, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और अल्लाह पाक की दुआओं में ये खुशियाँ घरों में भी नसीब फरमाए ताकि हमारी इनकी अच्छी गुजरे। और आप दोस्तों और भाइयों का सबका शुक्रिया, सब आपको अल्लाह पाक सलामत रखे। थैंक यू जमील साहब के बाद मैं चाहूँगा हबीब साहब। वो शख्सियत हैं, जब मैंने महकमा ज्वाइन किया तो उससे पहले भी मेरे हबीब साहब के साथ बड़े चंद मरासम थे। मैं शायद इन्हीं की वजह से इस महकमे को मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं कमिश्नर ऑफिस सामने वाले में था। हबीब साहब बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का कि इस अच्छे तरीके से रुखसत कर रहे हैं इस वक्त लोगों को। इससे पहले तो वो रिटायर होते थे, मोटे पर्दा रखे थे और जा रहे तो ये राशिद शाह साहब, नईम साहब, वही साहब, सबका बेहद शुक्रिया कि अच्छे तरीके से रुखसत कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जफर साहब, आपने भी इस महकमे को ज़िंदगी की बहुत बड़ी बहारें दी, बहुत ज़्यादा बहारें दी, आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों का जो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, चीफ साहब, सीनियर अफसरान और आप राशिद शाह साहब और हमारे तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इतनी अच्छी रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ रुखसत कर रहे हैं, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अल्लाह आपको जज़ा। मैं अब चाहूँगा कि इनको बाकायदा तौर पर ये फूल भी दिए जाएँ, इनके गलों में ये मालाएँ भी पहनाई जाएँ, फिर हम लॉन में चलेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अकबरा खान साहब हमारे सीनियर अफसर हैं, वो तशरीफ लाएं और इस्माइल साहब को सबसे पहले इनके गले में माला डालें। माला पानी माला नहीं पानी। अच्छा, समझ गए। अगर रियाज साहब इधर खड़े हैं, एक मिनट, रियाज साहब को भी बुला लें। जब तक रियाज साहब आते हैं यो साहब सिलसिला बढ़ाएं। बुलाओ ने यार। हाँ ना ना, वीडियो जारी रख। हाँ जारी रख, क्योंकि अपने चैनल पे नीचे आनी नहीं। वीडियो बंद नहीं करनी, उस पास करनी, ठीक? हाँ पास। सारे रियासत के कौन हम तैयब साहब को जेलम से आने पर वाले आना वेलकम करते हैं जी हमारे साथ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपनी शिरकत को यकीनी बनाने का वेलकम तैयब साहब। स्पेशल कॉन्टेस्ट थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारे इधर आ गए, इधर एक बंदे की रियाज साहब ने थोड़ा सा, एक के मेरी साहब ने थोड़ा सा
ہاں نعیم صاحب نے چلے ریاض صاحب نماز کے ساتھ مشغول ہیں جب تک ریاض صاحب آتے ہیں. میں چاہوں گا یہ ایک تاریخی موقع ہے اور اس تاریخی موقع پہ ایک تاریخی ایونٹ بھی ہونے جا رہا ہے. ہاں جی نعیم الرحمان صاحب ہماری اس مینجمنٹ ٹیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. ان کے بڑے بھائی ہیں حبیب صاحب. میں چاہوں گا کہ نعیم صاحب کے ہاتھوں اپنے بڑے بھائی کو بھائی کے طریقے سے جی دونوں بھائی اس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا ایسٹس ہیں الحمدللہ. ان کے والد صاحب بھی اس محکمے کے اندر بھی سروس کرتے رہے اور یہاں سے ریٹائر ہوئے تھے. اللہ ان کا وہ جان اچھا کرے. انتہائی شفیق انسان تھے اور ان کے بیٹے بھی بالکل اسی طرح انتہائی شریف النفس اور دوستوں کے ساتھ دکھ سکھ میں کام آنے والے ان کے بیٹے. میں جی سر تاریخی ایونٹ ہے کہ ہمارے اکبرہ بھائی جو ہیں یہ پختون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیل بھائی بھی پختون بیلٹ سے ہیں. تو پٹھان کے ساتھ پٹھان ایک اور دوسرے بھی پٹھان کے ساتھ پٹھان دو. تو آپ جناب ظہیر صاحب آپ تشریف لائیں. عرفان صاحب ہمارے ایڈمن آفیسر ہیں. میں چاہوں گا کہ عرفان صاحب کو تمام ہوا کوئی شک والی گل نہیں اور اچھے طریقے اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی بارش کو سب کو ایک اور بھی یہاں پہ رشتے پل پل بدلتے ہیں. وہ شادیوں میں یہ چیز اکثر لگتی ہے. یہاں پر بھی یہ اس طرح یہ ہے کہ یہ ہمارے طارق مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور ملک ظفر صاحب کے یہ بھتیجے ہیں. تو ان کی درینہ خواہش ہے کہ اپنے چچا کو میں اپنے ہاتھوں سے ودا کروں. ہم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں اور یہ آج تاریخ رقم ہو رہی ہے اور اس تاریخ ایک تو یہ بہت بڑا سپیل جا رہا ہے. میرا خیال کرتا ہے یہ 2023 کا سب سے بڑا سپیل ہے جس میں بیک وقت 6 بندے ہم اپنے ہاتھ سے ریٹائر کر رہے ہیں. سکسر اور رضوان صاحب اور جمیل صاحب رہتے ہیں. کوئی وحید صاحب کو میں چاہوں گا کہ ہاں یہ لکھا جمیل صاحب کے لیے ریاست. ہاں طیب صاحب اور وحید صاحب دونوں جو ہے نا وہ رضوان صاحب کو طیب صاحب آپ آ جائیں آگے کیونکہ میں تو چونکہ وحید صاحب بھی لکھا رہی ہیں. ہم چاہیں گے چلے جی جو ہمارے ساتھی دفتر اپنی اپنی سیٹوں سے آئے ہوئے ہیں وہ سارے ادھر شامل ہیں. چونکہ وہ کیمرے کی کوریج میں نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ریجنل ٹیکس آفس کی تمام امپلائمنٹ اس وقت نیچے ہے. کوئی ریاض صاحب کچھ دیکھا ذرا چلیں جی دوستوں کی خواہش تھی کہ میں جمیل صاحب کا بہت اچھا وقت گزرا. انتہائی شریف النفس انسان
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਮੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਸਰਵਨ ਸਰਵਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अल्लाह पाक इन सारिया भरा की खुश खरम रखा है और अल्लाह पाक इन्होंने बाद की जिंदगी में चंगे तरीके से गुजारा हंसने तो जाने रहे भाई हंसने रहे तो हंसते रहे। अच्छा ये रखे अभी दोबारा एक छोटी सी ऐसा रोड जा गए फोटो शूट कर लो। सब तो पहला तो मैं मियाँ साहब ने मशहूर हम नहीं सब पता जो मियाँ साहब अंदर बैठे हुए जो मियाँ साहब ने पता होना बड़ा अपनी भी चलनी चाहिए ना चलनी चाहिए। मियाँ साहब RTO रावलपिंडी नी जान रूए रवान आन बान मैं बहु बोलिया हूँ मियाँ साहब गल कर सकते और सिर्फ मियां साहब बात कर हूँ मियाँ साहब गल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वैसे अब बोलना छोड़ दिया है। शाह जी अल्लाह ताला सलामत रखे। हम दोनों भाइयों ने जो रस्म शुरू की थी आप जानेगा, भाइयों का अफसोस भी होता है लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि आप इज्जत एहतराम से जा रहे हैं और इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि शाह साहब ने माशाल्लाह मैं जहाँ पे भी रहा RTO से दूर हुआ थोड़े अरसे के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मेरी पोस्टिंग हुई तो पीछे आप लोगों ने भाइयों ने ख़ास तौर पे शाह साहब ने वहीद भाई ने ये रस्म को जारी रखा। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी के सेहत दे, अपने भाइयों के लिए ये मामलात ये चीज़ें देखते जाएँ करते जाएँ और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आज आप लोग हमसे इस जगह से जुदा हो रहे हैं, हमारे इस दफ्तरी मनसब से आप अलग हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे भाइयों की जगह पे हैं, आपके साथ हमारा हमेशा एक रिश्ता कायम दायम रहेगा। आपकी जो खुशी गमी है हमारी खुशी गमी इंशाअल्लाह ताला साझी रहेगी। आप भी हमारे पास आएँ, कभी कोई काम हो मैं एडमिन वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त करूँगा कि यार अपने इन भाइयों के मामलात को खुश असलूबी से अंजाम दिया करें। जब तक तो हमारा अल्लाह ताला के फजल से यूनियन का जोर होता था हम अपने तमाम मामलात बड़े अच्छे तरीके से टाइम पे करवा लेते थे। तो अभी तो मैं आप दोस्तों को ये दरख्वास्त करूँगा कि यूनियन की डर की बजाय अल्लाह ताला के डर से और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने दोस्तों के कामों में आसानियाँ पैदा करें। तो बस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक जो दोस्त हमारे घर जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। सब दोस्त जो यहाँ खड़े हैं मैं उन तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ कि आपके आने की वजह से ये जो तकरीब है ये पुररौनक हुई, बावकार हुई, क्योंकि एक होता है और एक से एक मिलके 11 होते हैं। दोस्तों ये इत्तेहाद ये अपना साथ इसी तरह कायम और दायम रखना, हमारे साथ भी हमारे बाद इसी में आप लोगों का वकार है, इसी में आप लोगों की इज्जत है और इसी में आप लोगों की इज्जत। ये जिंदगी में याद रखें कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, अपने भाइयों के साथ उनकी खुशी गमी के साथ इसी तरीके से अपना बर्ताव रखें। हमें यहाँ अपने बिछड़े हुए भाइयों को भी हम नहीं भूलते, हम उनके दुख में भी बराबर के शरीक हैं, उनको भी इस इवेंट पे हम याद करते हैं। कुदरत का लेख ऐसे लिखा था कि उनका वक्त ज़िंदगी का पूरा था। इस दुनिया में जो आया है उसने जाना है, किसी की दास्तां पहले मुकम्मल होती है, किसी की दास्तां लेट मुकम्मल होती है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमसे जो पिछड़े साथी हैं खासकर सुल्तान और हमारा भाई सुलेमान, ठीक है जी, हम ये भी एक दुख का इवेंट है कि ये हम भाई जो हैं आपस में दफ्तरी तौर पे हमारा नाता आज से एक और रुख पे जाएगा। तो अक्सर
जब आपको पता है ढूंढने रुखसत होती हैं तो माहौल सोगवार होता है, मापिया ने घर माहौल एक सोगवार ये ऐसा कुड़िया नहीं ऐसा मुंडे टो रही असा बावे टो रही है बावे कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुका मारन तक काम हो नहीं सकी। एक ज़रूरी बात है आप लोगों से, इस वक्त हम लोग नफरी में कम हैं, आप सारों को मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मेरी तरफ से आपने सब ने ना कम से कम यहाँ बंदे देख लें, 2-2, 3-3 बंदों को अंदर एक पैगाम देना है जो लोग नहीं आए हमारे लिए ना, हम ये एक हमारा कोई पीएम भी हो ना, हमारा कमिश्नर भी हो, इस वक्त तो हमारे लिए बिल्कुल बराबर है, ड्राइवर हो, पीएन हो, कमिश्नर हो, चीफ हो, जिसको भी रुखसत करना है सब हमारे लिए बराबर है। रियाज साहब आ गए जी हमारे आइंदा कोशिश करें कि जब भी कोई हमारे दोस्तों की रुखसती हो, सारे दोस्त यहाँ पे यार शामिल हुआ करें। ये मैं सबको पैगाम, हाँ दफ्तर में नहीं है कोई मजबूरी है वो एक बात अलग है, लेकिन दफ्तर में होते हुए इतना सा भी नहीं कर सकते कि हम अपने दोस्तों को यार एक आखिरी दफ़ा यहाँ विदाई कर दें, सारे लोग इकट्ठे हुआ करें। ये हम एक फ्लोर को छोड़ के आधे फ्लोर के भी लोग नहीं इस वक्त शामिल, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है ना थोड़ी, इन चीज़ों का सब ने पैगाम देना है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ हमारे दरमियान में एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर जनाब रियाज खान साहब तशरीफ ला चुके हैं, अब हम इन्हें मौका देंगे कि ये अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हमने तो काफ़ी बातें कर ली जी। रियाज साहब आप क्या? सबसे पहले तो तमाम साथियों को मुबारकबाद, 6 लोग जो हमारे आज तैयार हो रहे हैं, ये मेरे खुशी का मकान है, हमारी खुशी का मकान है, ये अच्छे छोड़ जा रहे हैं, अच्छी यादें छोड़ के जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमेशा हमारे से हिस्सा है, हमारा हिस्सा रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी किसी का नाता जो होता है वो दफ्तर के साथ, अपने महकमे के साथ जुड़ा ही रहता है किसी न किसी सूरत में। तो पूरे RTO की तरफ से, चीफ कमिश्नर की तरफ से और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सब की तरफ से इनको और इनके ख़ानदान वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने भी जानफशानी से ईमानदारी से, जो किसी की 30 साल होगी, किसी की 32 साल होगी, किसी की 35 साल होगी, तो ज़िंदगी का प्राइम टाइम है, ये अपने मुल्क और कौम की खिदमत में लगा दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा और इनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए हमारी दुआएँ और उन्होंने आप सब के साथ अजान हो रही है बस अब इनके साथ सर आप आए, एक तस्वीर हो जाए आपकी, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। एक मिनट